Good morning, everyone. A very warm welcome to each and every one of you in today's science class. Before going ahead with our new chapter, I would like to little bit brief you about the Zoom classes which happened yesterday. Okay, and thereafter we will be going ahead with the syllabus part. Uh, I would like to mention this thing, that is whatever happened yesterday in that Zoom class. Okay, I am a little bit disappointed with you all. Okay, because I told you to please mute yourself, not to write anything. Okay, all of you know this thing, that is technical difficulties are always there. Okay, I cannot, network is not under my control, that is I can have it control access to it. ठीक है, मेरे अंदर में कंट्रोल नहीं है, ठीक है, नेटवर्क का, कि मैं नेटवर्क को बुला करके बोल दूं कि हाँ यहीं पे रहो, ठीक है, मेरे पास ही एकदम हमेशा 110% रहो, ठीक है. तो दिस इज नॉट अंडर माई हैंड. इज दैट क्लियर? So I cannot help you out with that. But if you remember earlier that when we started the classes, there was technical difficulty in the sound. ठीक है, आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी. So what happened now, that has been cleared out. Okay, so whatever things are there which can be cleared out, okay, of course I'm going to do it. You don't have to take any trouble for that. But the things which are not under my control, I cannot help you out with that. Okay, apart from that, yesterday you also can understand this thing, that is, since if the entire class is speaking, okay, so whether it is me or you or the principal or the management or anyone else, okay, nobody will be able to understand anything. Okay, so in order to have a smooth discussion, in order to have a smooth revision class, okay, a proper decorum as well as instructions have to be followed. In spite of muting, that is when I muted each and every one of you, still some of you were able to prompt now and then. Okay, some of your family members were talking, but you will have to take care of this thing, because these are the things which you will have to take care from your part. ठीक है, अब मैं आपकी फैमिली में आकर के नहीं कह सकता कि हाँ बेटा आप लोग बात मत करिए, क्लास हो रही है. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट इज आप म्यूट कर दीजिए. ठीक है, फिर आपके घर में कोई चिल्ला रहा है चाहे बात कर रहा है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी आवाज़ नहीं आएगी, बिकॉज इट इज़ नॉट 1-to-1 क्लास, रिमेंबर. ओके, एंड नाइदर इट इज़ 1-to-1 ब्रांच क्लास. Okay, that 4 entire students from the 4 branches are participating in the class. So it is my humble request from each and everyone to maintain the decorum. Last, this Zoom classes are not compulsory for us, remember. ठीक है, मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है कि नहीं मुझे लेना ही है. Okay, this is just a revisional class to have a friendly environment with you, to have a little bit of interaction with you. Okay, so if you are not going to cooperate, I don't need any interactive classes. I just have to finish the syllabus and clear your doubts, whatever it is. Is that clear? So I request you, as well as I suggest you, please maintain the decorum in the Zoom classes. Okay, some of you are lying here and there, some of you are talking to your parents. If you really want to talk to your parents, no need to join the meeting or no need to join the classes. Okay, just continue. You have the entire day to talk with your parents. Okay, so that's all for today regarding the Zoom classes. Okay, now I'm going to start with the chapter, that is the skeletal system and the nervous system. Okay, before going ahead with the chapter, let me tell you, that is I'll be providing you the PDF of this chapter, and whatever has been taught to you, you will read that, and at the same time the further readings, that is the reading in advance, has also to be done by you only. ठीक है, आप आगे का क्या पढ़ा आपको पढ़ाया जाएगा, that is what I am going to teach you in the next class. I suggest you to have a reading over that also, so that you be on a safer side, you do not get into any kind of trouble. Is that clear? So this was a little bit of hint from my side, rest it's completely up to you. Okay, let me share the screen so that we can start with the chapter today. Okay, so this is our chapter, that is the skeletal system and the nervous system. Okay, now first the basic objective, that is what are the things which we are going to learn or study in this chapter. So the very first thing is that the structure and the functions of the skeleton. Okay, so when we are talking about the structure and the functions of the skeleton, what is the skeleton? See, in Hindi,
ठीक है, अगर आपको बोला जाए, या फिर भूत वाली पिक्चरें, जितने भी हॉरर मूवीज होती हैं, अगर आप जब उनको देखते हैं तो उसमें आपको क्या दिखाई देते हैं, ठीक है, कंकाल दिखाई देता है। तो द हिंदी ऑफ स्केलेटल इज नथिंग बट योर स्केलेटन, जिसको हम बोलते हैं, जहाँ से ये वर्ड बना है स्केलेटल। Skeleton is nothing but your kankal. That is the entire bony framework of our body is known as the skeleton, kankal. The types of joints and the muscles and their functions, the main parts of the nervous system and their functions, reflex action and memory. This is the most important part, that is the last one. These are also no less important than this. Okay, so let us start our chapter and let us see how much we are able to complete in this part. Okay, starting with this, get set, that is first and the foremost thing, let us try to match this part, that is this, our human body contains 206 bones, ठीक है। ये मैच्योर ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बेसिकली जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं, जो बच्चे तुरंत पैदा हुए रहते हैं, बेसिकली दे हैव 300 बोन्स, एंड एज दे ग्रो, दैट इज जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, तो द बोन्स दे कीप ऑन फ्यूजिंग टुगेदर, मतलब वो बोन्स आपस में जुड़ने लगते हैं, और जुड़ते जुड़ते जब adult person हो जाता है, whether it is a male or a female, in that case the adult human body contains 206 total bones. Okay, so first we have to match it. Let us see, this is the leg portion, if you can see, this is the leg, so first, and the D part, this one. Moving ahead with the second one, so second one, what you are able to see, face, teeth, this one, C part. Third one, hand with the fingers, this one, A part. And this one, the knees, that is the legs we are talking about, so B part. Okay, so this is how we are able to identify the bones which are present inside this muscles or inside our skin. Okay, inside our body. Let us start with this. Okay, the introduction of the chapter says that our body is made up of many organs such as heart, lungs, kidney and the brain. Okay, इससे भी बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बस इतने ही ऑर्गन्स हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम देम ऑल्सो वी हैव मेनी अदर ऑर्गन्स विच आर वर्किंग फॉर आवर बॉडी। अब मतलब क्या है, पहले इसको समझ लीजिए, ऑर्गन्स को आप कैसे समझेंगे, ठीक है। जैसे आपके स्कूल में क्या है, टीचर्स हैं, टीचर्स का काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को मैनेज करना। तो ठीक उसी तरीके से तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किसके लिए काम करते हैं, टीचर्स आर वर्किंग फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर द मैनेजमेंट और द स्कूल। सो इन द सेम वे फॉर आवर बॉडी ऑल्सो दीज ऑर्गन्स दे कीप ऑन वर्किंग एंड दे कीप ऑन परफॉर्मिंग वेरियस टास्क्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आवर बॉडी कीप्स ऑन वर्किंग, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी खाली अकेले एक ही दो लोगों के बल पे नहीं चल रही है, या फिर हमारी बॉडी अकेले अपना सारा काम नहीं करती है, बल्कि उसके अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक हार्ट, लंग्स, किडनी एंड द ब्रेन, और सबका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, ठीक है। जैसे अभी मैंने जूम ऐप की जैसे बात की, ठीक है, तो क्या हो रहा था क्लासेस में, मैं आपको कुछ बोल रहा था, ठीक है, आधे लोग सुन रहे थे या मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स सुन रहे थे, लेकिन कुछ लोगों की वजह से क्या होता है, ठीक है, पूरा का पूरा सिनेरियो खराब हो जाता है। तो वहाँ पे किस चीज़ की लैकिंग है, कोऑर्डिनेशन की लैकिंग है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन किस में, आप में और मेरे बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब एंड आई वॉज लिटिल बिट सरप्राइज्ड एज वेल। Okay, why I was surprised, I am telling you that also. Surprise ये था कि more than a month has been passed, I hope, for the classes which are being taken by me, but still some of you are waiting for the ma'am or some other lady who was teaching you science. I don't know why. ओके, ठीक है, तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि या तो आप ध्यान नहीं दे रहे हो, या तो आप क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे हो, आप न्यूली ज्वाइन हो तो समझ में आता है, बट द ओल्ड स्टूडेंट्स, ओके, आई एम नॉट अ मैम, आई एम अ सर, एंड इट इज़ नॉट लाइक दिस दैट यू आर सीइंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। आई हैव बीन टेकिंग द क्लासेस सिंस लास्ट मंथ, रिविजन्स, एवरीथिंग हैज़ बीन डन। ओके, सो आई होप प्लीज़, ये है एक छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर हमारे साइंस के टीचर सर हैं कि मैम हैं, तो यू आर स्टिल कन्फ्यूज्ड, ओके, बिफोर ज्वाइनिंग द मीटिंग कुछ लोग कर रहे हैं, अरे मैम अभी तक नहीं आई, मैम ने, तो
वाई डोंट यू नो योर साइंस टीचर, or are you not aware of him or her? Okay, so please do take care of all these things. Okay, please don't mind, but since this has happened a lot many number of times, so I am specifying it today. तो क्या है, तो वहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो रहा है. ओके, सो इन द सेम वे हमारी बॉडी में भी, ठीक है, क्या है, ढेर सारे ऑर्गन्स हैं और काम किसके लिए करना है, सबको एक ही लोग के लिए काम करना है. किसके लिए? हमारी बॉडी के लिए. तो ढेर सारे ऑर्गन्स, काम सबको एक के लिए करना है, बॉडी के लिए करना है. तो अगर ये सारे ऑर्गन्स कोऑर्डिनेशन में, ठीक है, अच्छे तरीके से काम नहीं करे, एक डेफिनेट रोल जो उनको दिया गया या उनको जो बताया गया है, अगर वो उस चीज़ को परफॉर्म नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. ठीक है, प्रॉब्लम क्या होगी, सब मिसमैच हो जाएगा. ठीक है, आप रोड पे चलते हो तो आपको पता है कि कई चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं. ठीक है, आपके बॉडी के अंदर का सर्कुलेशन भी चल रहा है, आप सांस भी ले रहे हो, ऑक्सीजन भी ले रहे हो, आँख से देख भी रहे हो, दिमाग से सोच भी रहे हो कि हाँ हमें लेफ़्ट जाना है कि राइट जाना है, कहाँ पे जाना है, किस लिए जाना है. ठीक है, फिर वापस भी आना है, वो सारी चीज़ें भी आपके दिमाग में हैं. तो क्या है, एक साथ आप बहुत सारे टास्क को कर रहे हो. ओके, बट थिंक ऑफ अ सिचुएशन कि अगर ये सारे टास्क क्या हो जाए, मिक्सअप हो जाए. ठीक है, आपको मतलब समझ ही में ना आए, आपका दिमाग काम न करे, तो उस समय क्या होगा, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनी ऑफ द थिंग्स प्रॉपरली. ठीक है, ना आप चल पाओगे, ना सोच पाओगे, ना देख पाओगे, ना सांस ले पाओगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा. एंड दैट कंडीशन विल रिजल्ट टू मिसमैनेजमेंट या फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. ठीक है, फुलफिलमेंट नहीं होगा. ठीक है, पर्पज सिद्ध नहीं होगा. अगर शुद्ध हिंदी में हम बोलें तो हमारा जो कार्य है उसकी सिद्धि नहीं होगी. जो आप काम करना चाह रहे थे, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट. ओके, सो इन द सेम वे, ठीक है, जूम ऐप पे क्लासेस हम लोग किस लिए कर रहे हैं, इंट्रैक्शन के लिए कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे किसी और के साथ ही इंट्रैक्शन हो रहा है. तो आपको किसी और के साथ इंट्रैक्शन नहीं करना है, मेरे साथ करना है. इज दैट क्लियर? लेट अस कम बैक टू द चैप्टर. ओके, फर्स्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन टू यू. राइट. Okay, so now how many processes now see each of them performs a particular function. ये बहुत ही ज़रूरी है, याद रखिएगा. ठीक है, अब ये कैसे ज़रूरी है ये मैं आपको फिर से बताता हूँ. ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया. ठीक है, आप कहीं जा रहे हो कोई सामान ले आने के लिए, इसको हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर देते हैं. लाइक आपके ऑर्गन्स, जैसे मैंने 3-4 चीज़ें बताई आपको कि आपके यू आर टेकिंग एयर, ऑक्सीजन थ्रू योर नोज, आईज आर एबल टू सी, ईयर्स आर वर्किंग फॉर द पर्पज ऑफ हियरिंग. ओके, तो इन सब का फंक्शन क्या है, अलग है. आँख का देखना, कान का सुनना, नाक का सांस अंदर लेना, एयर अंदर लेना, ऑक्सीजन अंदर लेना. ठीक है, और ये सब क्या कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं. ऐसा नहीं होता है कि थोड़ी देर तक नाक सांस ले रहा था, फिर थोड़ी देर बाद यही नाक आपका देखने लगा. ऐसा होता है कभी? नहीं होता है. ठीक है, या फिर आपका यही नाक सुनने लगा कि नहीं अब मेरा सांस लेने का मन नहीं कर रहा तो अब मैं सुनूंगा. ठीक है, फिर नाक से यहाँ कान से सांस जाने लगती है, एयर जाने लगता है, या फिर आँख से एयर जाने लगता है, या फिर आँख सुनने लगता है, कान देखने लगता है. कभी ऐसा देखा? नहीं होता है. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज योर कोऑर्डिनेशन. ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर इन ऑर्गन्स को हमारा ब्रेन इतनी अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करता है कि ये कभी भी आपस में इंटरेक्ट नहीं होते हैं, या सॉरी मतलब इंटरेक्ट ना होने का मतलब कभी भी आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं. अपने फंक्शंस को इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं कि कभी क्लैशेस नहीं होते. ठीक है, कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है. अगर आप देख रहे हो तो आँख से देख रहे हो. ठीक है, उसी टाइम पे आप अपने दिमाग से कुछ सोच भी सकते हो. ऐसा नहीं कि खाली एक टाइम पे आपका एक ही चीज़ दिमाग काम करेगा. इज दैट क्लियर? सो दैट इज़ वाई वी से दैट ईच एंड एवरी ऑर्गन हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन. और ये ऑर्गन किसी दूसरे ऑर्गन के किसी भी फंक्शन के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा. ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है, ये समझ लीजिए. ठीक है, कैसे ज़रूरी है? देखिए, साइंस पहली चीज़ तो पूरा का पूरा हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ से जुड़ी हुई है. ठीक है, तो आप इसको अपने अंदर के कॉमन एग्जांपल्स को लेकर के स्पेसिफाई करिए, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, क्लास में हम बैठते हैं. ठीक है, आपकी टीचर से क्या कंप्लेन रहती है, या फिर आप नोटिस करते हैं इस चीज़ को, टीचर ही हैज़ टेकन माई पेंसिल, ही इज़ नॉट स्टडिंग, ही इज़ लुकिंग एट मी, ही इज़ स्टेयरिंग एट मी, ही इज़ फाइटिंग विथ मी. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? ठीक है, आप दूसरों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिए हो.
ठीक है, कौन खिड़की से जा रहा है, ठीक है, कौन कैसे जा रहा है, कौन क्या कपड़ा पहना हुआ है, कौन क्या नहीं कर रहा है, ठीक है, कौन क्या कर रहा है, कौन बात कर रहा है, कौन बुक खोला है कि नहीं। ओके, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो इसी तरह ये ऑर्गन्स भी अगर एक दूसरे का काम देखने लगते या बुराई करने लगते कि हाँ नाक कहने लगता कान तुम सुन नहीं रहे हो, ठीक है, ठीक है, आँख तुम देख नहीं रहे हो, तो ऐसे नहीं चल पाता। ठीक है, तो सबका जो रोल है वो अपना अपना रोल परफॉर्म कर रहा है, दूसरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है इनको इससे कोई मतलब नहीं है, ये जान लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल, आपके कान दर्द करते हैं, ठीक है, तो उसके वजह से क्या आंखें खराब हो जाती हैं या नाक सांस लेना बंद कर देता है? नहीं। ठीक है, तो जिसमें प्रॉब्लम है उसका इलाज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके वजह से हम अपनी दूसरी चीज़ों की एक्टिविटीज़ को हिंडर या डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू फॉलो इन आवर रियल लाइफ ऑल्सो। ठीक है, इन्हीं ऑर्गन्स की तरह हमें भी अपनी रियल लाइफ में काम करना चाहिए कि दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, what matters the most is you have to think about yourself, आप क्या कर रहे हो, that matters a lot. Okay, अगर आप सही हो तो सब कुछ सही है, आप नहीं सही हो तो फिर you cannot expect anyone else to be right with you. Okay, let us go ahead, let me share the screen first. Okay, so now a group of organs that work together to perform a function is known as organ system. Now see, a group of organs that work together to perform a specific function. ठीक है, अब देखिए ये organs अकेले तो काम करते ही हैं, ठीक है, organs अकेले अकेले अपना काम तो कर ही रहे हैं, पर कई ढेर सारे organs आपस में भी जुड़ करके एक बड़े प्रोसेस को भी कैरी आउट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा इस बात को। ठीक है, आगे के चैप्टर्स में, ठीक है, या इसके बाद ही है तुरंत। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दे वर्क टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर और फॉर द प्रॉपर एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा आपको हायर लेवल पे लेकर के जा रहा हूँ, वापस हम लोग इसी पे आ जाएंगे। फर्स्ट लेट मी शेयर यू द स्क्रीन फर्स्ट and then I'll be sharing you the desktop. Okay. Okay. If you observe here, so I'm telling you how our entire body is made up of. Okay. So the very first thing, that is the smallest unit, is known as your cell. Okay. That is each and every part of your body is made up of cell. These cells when they group together, ठीक है, जब ये सेल्स क्या करते हैं, ढेर सारे सेल्स आपस में जुड़ जाएं, ठीक है, तो देन दे फॉर्म टिश्यू. इज दैट क्लियर? दैट इज ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू. फिर यही टिश्यू क्या होता है, फिर अगेन दे स्टार्ट फॉर्मिंग द ग्रुप्स एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज योर ऑर्गन्स और योर ऑर्गन. ओके, इन द सिमिलर वे group of organs they form organ system which we studied just now. Is that clear? Okay, and group of organ system together form the organism, or we also call this organism to be body. समझ में आया? ठीक है, that is cell सबसे छोटी यूनिट, मतलब पूरी की पूरी बॉडी हमारी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई. ठीक है, एंड दीज आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर. ठीक है, बहुत छोटे होते हैं, हम इनको पूरा नहीं देख सकते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच वी स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर. ओके, देन अगेन दिस ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब ये सेल क्या करते हैं, आपस में ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप बना करके क्या बनाएंगे, फिर टिश्यू बना देंगे. फिर अगेन ग्रुप ऑफ टिश्यू दे फॉर्म ऑर्गन्स, अगेन ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा. Then again group of organs they form the entire organism or the body. ये समझ में आ गया? ठीक है, so this is how the entire system of our body works. ठीक है, इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनी हुई है. पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लीजिए और ये याद रखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट वन मोर थिंग, दैट इज here what you are able to study, you are going to study this part only. Okay, this part you are going to study in the
this class or in this chapter. Okay, that is, you will be studying about different organs. Organ system I don't think you are going to study, but let us see. Organ system आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे 7th में, ठीक है. ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म, अपनी बॉडी के बारे में तो हम शुरुआत से पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है. अब ये जो दोनों हैं, that is your cell and the tissue, that is this part you are going to study in your higher classes. Okay, cell and the tissue. सेल के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लोगे क्लास 8th में, टिश्यू के बारे में पढ़ोगे 9th में, एंड दिस टिश्यू विल कंटिन्यू अप टू योर 12th क्लास और 11th क्लास. इसी टिश्यू के बारे में आप 9th में भी पढ़ोगे, फिर 11th में पढ़ेंगे, ठीक है. और सेल के बारे में आप पढ़ोगे 8th में पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे और फिर 12th में पढ़ेंगे, ठीक है. तो इस तरीके से पढ़ाई करना है, ठीक. चलिए शुरुआत करते हैं अब इस पार्ट की. तो ये था पूरा हमारा ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी बनी हुई है, ठीक है. तो कोई भी आपसे पूछेगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, तो द स्मॉलेस्ट यूनिट इज द सेल, ठीक है. चलिए अब एक चीज और, जब ये टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, सो इस लेवल पे ही इनको एक फंक्शन असाइन कर दिया जाता है. जैसे आई के अंदर जो भी टिश्यूज प्रेजेंट होंगे तो उनको बोल दिया जाएगा अब आप खाली देखने का काम करिए, तो वो और कोई काम नहीं करेंगे. एंड दैट सेम फंक्शन गेट्स ट्रांसफर्ड टू द ऑर्गन ऑल्सो, ठीक है. जो फंक्शन टिश्यू को स्पेसिफाई होगा वही फंक्शन ऑर्गन भी परफॉर्म करेगा, ठीक. Let me share you the screen. Okay, I did not show you this thing. Okay, please see to this. Okay, टिश्यू लेवल पे ही क्या होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर दिया जाएगा, असाइन कर दिया जाएगा, रोल दे दिया जाएगा, और जो फंक्शन ये टिश्यू परफॉर्म करेगा वही सेम फंक्शन ये ऑर्गन भी परफॉर्म करेगा. इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस मूव अहेड विद द चैप्टर. ओके, दिस पार्ट. So till organ system it is clear, I hope now. Okay, now see, our body has several organ systems and the major organ systems of the body and their functions are outlined below. ठीक है, कौन कौन से फंक्शन सिस्टम्स हैं, ठीक है. ऑर्गन सिस्टम की बातें हो रही हैं, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं ऑर्गन सिस्टम के. डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, स्केलेटल, मस्कुलर, सर्कुलेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, एवरीथिंग, ठीक है. अब देखिए इन सारे सिस्टम्स में से 2 systems, that is your this one nervous system and the skeletal system, this you are going to study now in this chapter, ठीक है. digestive, respiratory or respirative, circulatory and your excretory system, ये आप 7th में पढ़ लेंगे, ठीक है. that is 1, 2, 5 and 7, ये आप 7th में पढ़ लोगे. then comes your reproductive, आप 10th क्लास 8th में भी पढ़ेंगे, फिर 10th में भी पढ़ेंगे. Okay, and this nervous system again you will be studying in class 10th in detail, ठीक है. आइए इंट्रोडक्शन लेते हैं इन सारे सिस्टम से, फिर हम बात करेंगे इस कंकाल की, स्केलेटन. ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है. जो भी हम खाना खाते हैं, ओके, व्हाट हैपन्स टू दैट फूड, वेयर इट इज गोइंग, हाउ इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी, ईच एंड एवरीथिंग comes in this category of the system which is known as the digestive system. Respiratory system, इसमें आपकी 2 चीज़ें आ जाती हैं, taking up of oxygen and how this oxygen is utilized for generating energy, ठीक है. respiration से याद रखिएगा, respiration खाली taking in oxygen ही नहीं है, ठीक है. अभी यही आगे चल के आपको 7th क्लास में इसमें ऐड हो जाएगा कि respiratory system में 2 चीज़ें होती हैं, breathing और रेस्पिरेशन, ठीक है. तो इस ऑक्सीजन से कैसे हमें एनर्जी मिलेगी, दैट ऑल्सो कम्स अंडर दिस कैटेगरी ऑफ रेस्पिरेशन ओनली. ओके, स्केलेटल सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कि बोनी फ्रेमवर्क है, ठीक है. आप भी जानते हो स्केलेटल सिस्टम को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है. यहाँ से चलिए देखिए, when we go to the shops or the malls, okay, what do you find? You find that there are some statues are there, होते हैं ना, ठीक है. कुछ
लड़के लड़कियाँ, ठीक है, ये लोग रहते हैं, उनकी पूरी बॉडी रहती है वहाँ पे, एक आर्टिफिशियल बॉडी, स्टैच्यू जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर क्या होता है, उसके ऊपर उन्हें ड्रेसअप कर दिया जाता है, साड़ी, शर्ट, पैंट्स, एवरीथिंग, ओके। सो देन दे लुक दैट एंटायर बॉडी, ठीक है। तो वो स्टैच्यू इज नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग योर स्केलेटल सिस्टम, ये याद रखिए, ठीक है। अगर खाली कपड़ा, ठीक है, अगर वो स्टैच्यू ना रहे और अगर आप कपड़े को टांगेंगे तो क्या होता है, ठीक है, वो कपड़ा इट विल बी बिहेविंग एज इफ यू आर हैंगिंग द क्लोथ्स ऑन अ हैंगर, ठीक है। जैसे आप हैंगर में करके किसी कपड़े को टांग देते हैं तो उसी तरीके से वो दिखाई देगा, ठीक है। बट दिस स्केलेटन हेल्प्स अस टू गिव अ प्रॉपर शेप टू द बॉडी, ठीक है। हमारे बाइसेप, ट्राइसेप्स, हाइट, वेट, एवरीथिंग, ओके, विड्थ, ठीक है। ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर शेप, प्रॉपर शेप कहाँ से मिलता है, स्केलेटन से मिलता है। इज दैट क्लियर? मूविंग अहेड, लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट, ओके। मस्कुलर सिस्टम, जितने भी काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये स्केलेटल सिस्टम खाली क्या करता है, याद रखिएगा, सपोर्ट्स द बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स। अब ये देखिए, चलिए अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ही, प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स का काफ़ी बड़ा रोल है यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी बड़ा रोल क्यों है, मैं आपको बहुत चैप्टर बहुत डिटेल में लेकर के जा रहा हूँ, और याद रखिएगा एक भी क्लासेस मिस मत करिएगा, प्लस बी अटेंटिव, क्योंकि इससे बढ़िया कोई नहीं समझा पाएगा, ये भी मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स, अब देखिए कुछ हमारे बॉडी पार्ट्स में ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कि उनके बिना चल नहीं सकता है या काम नहीं कर सकती है पूरी बॉडी, ठीक है। जैसे ब्रेन, ठीक है, ब्रेन को क्या कहा जाता है, ठीक है, ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है, जस्ट लाइक योर सीपीयू, ठीक है। जैसे आपके कंप्यूटर्स में सीपीयू होते हैं जो कि पूरे के पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है, आपके मॉनिटर्स, माउस, कीबोर्ड्स, एवरीथिंग, प्रोग्राम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सबको मैनेज करता है, ठीक उसी तरीके से ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ योर बॉडी, ठीक है। इस कंट्रोल सेंटर में अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो क्या होगा, पूरी की पूरी बॉडी काम करना बंद हो जाएगी, या तो फिर माल फंक्शनिंग हो जाएगा, ठीक है, कोई ढंग से नहीं काम करेगा या कोई बहुत ज़्यादा काम करने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया, इसको प्रोटेक्ट किया गया है किससे, ठीक है, बोनी फ्रेमवर्क, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है हमारा स्कल, खोपड़ी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक। तो स्कल, ठीक है, खोपड़ी, ठीक है, तो इसको प्रोटेक्ट करना ज़्यादा जरूरी था एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गन, इसीलिए ये देखिए ये आपका सबसे स्ट्रांग है, इससे स्ट्रांग आपकी बॉडी में कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सांस, खाने के वी कैन रिमेन अलाइव फॉर सम टाइम विदाउट ईटिंग द फूड, बट थिंक ऑफ द सिचुएशन, यू कैन नॉट रिमेन अलाइव विदाउट हैविंग एयर और विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, हमारे लंग्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, इन आवर चेस्ट, ओके। सो इस चेस्ट रीजन में हमारे लंग्स प्रेजेंट हैं और बिना सांस लिए हम थोड़ी देर भी नहीं रह सकते, सो दैट इज वाई दिस लंग्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड हियर। तो यहाँ पे भी क्या है, रिब केज प्रेजेंट है, वो भी आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ इंटरनल ऑर्गन्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही डेलिकेट हैं, ठीक है, तो उन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन्हें कुछ हुआ तो वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव फॉर इवन अ मिनट और इवन अ सेकेंड एज वेल। वाज दैट क्लियर? ओके, so let me share you, let us starting with this muscular, I told you, okay, muscular system, this allows the movement of the body, ठीक है। अब देख दूसरी चीज, ये मसल्स ही हमारे सारी एक्टिविटी को करने में मदद करते हैं, मूवमेंट होगी तभी एक्टिविटी होगी, आप भी समझ सकते हो, बैग उठाना है तो हाथ को मोड़ना पड़ेगा, फिर हाथ को सीधा करना पड़ेगा, तभी आप उठा सकते हो बैग को। अगर आप कहिए सीधे हाथ रख करके बैग उठा लें और आपके शोल्डर्स पे आ जाए बैग अपने आप, तो इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है। खाना सीधे हाथ से आप उठा के नहीं अपने मुंह में रख ही नहीं सकते हैं, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस, ठीक है, आप अपने हाथ को मोड़ सकें, ठीक है। तो अलाउज मूवमेंट एंड हेल्प्स इन कैरिंग आउट वेरियस एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, मस्कुलर सिस्टम तक हो गया है, इनके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्यों? बिकॉज टाइम इज नॉट देयर एंड आई डोंट वांट टू मिस एनी ऑफ दीज टॉपिक्स, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो जैसा मैं अभी आपको शेयर कर रहा था मस्कुलर सिस्टम के बारे में,
ठीक है, ये आपका हाथ है, ठीक है, आप ये हाथ अपना सीधा रखिए। आप कभी खाना मुंह में डाल सकते हो बिना हाथ को फोल्ड करे? नहीं कर सकते। ठीक है, ट्राई करके देखिए, हाथ सीधा रखिए और हाथ में एक बिस्किट ले लीजिए एंड ट्राई टू पुट इट इनसाइड योर माउथ। कैसे भी करेंगे, यू आर नॉट एबल टू डू। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आई होप यू वुड बी enjoying it much more in this chapter as compared to earlier parts. ठीक है, so that's all for today. Please don't forget to take all the necessary precautions and be safe. Okay, and please behave properly and learn some good manners. Is that clear? Thanks a lot for being with me. Have a great day ahead.